عمران اپنے ساتھیوں سمیت وسیع اور کھلے میدان میں آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جنرل شفٹ انچارج جارج نے واقعی سٹین ویگن پر انہیں ایک جگہ پہنچا کر وہاں اتار دیا تھا۔ سٹیشن ویگن پر انہیں ایک جگہ پہنچا کر وہاں اتار دیا تھا تو جہاں سے چیکنگ سپاٹ ختم ہو جاتا تھا۔ البتہ عمران نے اس جارج سے یہ بات اپنے طور پر معلوم کر لی تھی کہ لیبارٹری زیر زمین ہے اور باہر سے کسی صورت بھی راستہ نہیں کھل سکتا۔ البتہ ایک بات جارج نے اپنے طور پر بتائی تھی اور اس کی بات سن کر عمران کی آنکھوں میں یکلخت تیز چمک آ گئی تھی کہ لیبارٹری کے باہر ایک کافی وسیع قطر کا کنواں ہے جسے ماسٹر ویل کہا جاتا ہے۔ اس کنویں کی چھت لیبارٹری کے اندر سے کھولی اور بند کی جا سکتی ہے، اور اس نے مزید بتایا تھا کہ ہر 15 روز بعد ماہرین کی ٹیم آتی ہے جو اس کنویں کے اندر موجود مشینری کی باقاعدہ چیکنگ کرتی ہے تاکہ لیبارٹری کو ہونے والے پانی کی سپلائی درست طور پر جاری رہے۔ چونکہ جارج سرکاری طور پر سیکورٹی کی غرض سے اس ٹیم کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے اسے اس بارے میں تمام تفصیل کا علم تھا، اور عمران نے اپنے مخصوص انداز میں اس سے اس بارے میں تمام تفصیل معلوم کر لی تھی، اور اس وقت وہ اس ماسٹر ویل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، اور اس کی مخصوص نشانی کا بھی اسے علم تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ اسے تلاش کر لے گا۔ مسٹر مائیکل، یہ اندر سے کھلتا اور بند ہوتا ہے، پھر آپ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ اچانک صفدر نے کہا۔ اب تک اگر تم زندہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کامیابی مطلوب ہے، اس لیے یہ کام بھی ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو صفدر کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا ہم پر میزائل فائر کیا جا سکتا ہے؟ اس بار جولیا نے چونک کر کہا۔ اس ایریا کے اندر سے باقاعدہ چیکنگ کی جا رہی ہوگی اور ہمیں کسی سکرین پر دیکھا جا رہا ہوگا، اور لازمی بات ہے کہ حفاظتی انتظامات کے تحت اندر سے یہاں میزائل فائرنگ کا بھی کوئی سسٹم موجود ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ، پھر تو ہم شدید خطرے میں ہیں، ہمیں علیحدہ علیحدہ آگے بڑھنا ہوگا تاکہ سب اکٹھے فائرنگ کی زد میں نہ آ جائیں، جولیا نے کہا۔ بے فکر رہو، اب تک کچھ نہیں ہوا تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم اس قدر مطمئن کیوں ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ یہاں کمپیوٹر بلاسٹنگ نظام نافذ کیا گیا ہوگا، کیونکہ جدید دور میں اس ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا سمجھنے والوں کو یہ معلوم نہیں کہ مشین کو انسانی دماغ سے بڑی آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور یہی کام میں نے کیا ہے۔ اب جو بھی ہمیں اندر سے دیکھ رہے ہوں گے وہ بیٹھے دانت پیس رہے ہوں گے، عمران نے کہا۔ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ ہمیں بھی بتاؤ، جولیا نے کہا۔ کمپیوٹر بلاسٹنگ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ٹارگٹ کمپیوٹر میں فیڈ ہو جائے، ورنہ بلاسٹنگ نہیں ہو سکتی، اور میری جیب میں ایک ایسا آلہ موجود ہے جس کی وجہ سے ٹارگٹ فیڈ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کمپیوٹر بلاسٹنگ نہیں ہو سکتی، ورنہ اب تک شاید سینکڑوں نہیں تو 10-12 میزائل ہم پر فائر ہو چکے ہوتے، اور کمپیوٹر بلاسٹنگ کی وجہ سے ہم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ سکتا تھا، عمران نے کہا۔ تو سب کے چہروں پر عمران کے لیے تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ تم پہلے سے یہ سب کچھ سوچ لیتے ہو؟ کیا تم علم غیب جانتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے غیب کا علم نہیں ہو سکتا، البتہ شیطان اس کے کان میں پھونک مار جاتا ہوگا، تنویر نے کہا۔
ओहो, इसीलिए तुम बार बार मेरे कान में फूंके मार रहे थे। इमरान ने बिला तवक्कुफ कहा तो सब बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम बताओ इमरान, क्या वाकई तुम्हें गैब का इल्म हो जाता है? जोलिया ने कहा। कैसी बात कर रही हो जोलिया? गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात को है, किसी इंसान को नहीं। और अगर किसी इंसान को कोई बात मालूम भी होती है तो सिर्फ उतनी जितनी अल्लाह ताला की मर्जी से उसे बताया जाता है। मुझे चूंकि ऐसी लेबॉर्टरियों के जदीद इंतजामात के बारे में इल्म है और हमारा ऐसे इंतजामात से वास्ता भी पड़ता रहता है, इसलिए अमकानी अंदाज़ा तो कोई भी लगाया जा सकता है। ये और बात है कि वो अंदाज़ा दुरुस्त निकलता है तो ये समझ दिया जाता है कि उसे पहले से तफसील का इल्म था। इमरान ने जवाब दिया तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन इमरान साहब, उस मास्टर वेल में दाखिल होकर हम क्या करेंगे? क्या वहां से हम लेबॉर्टरी में पहुंच सकेंगे? सफ्तर ने कहा। नहीं, जो तफसील मुझे जॉर्ज से मालूम हुई है उसके मुताबिक वहां से सिवाय उन पाइपों के और कोई रास्ता नहीं है, और पाइप बहरहाल इतने चौड़े नहीं हैं कि हम उनसे गुजरकर लेबॉर्टरी पहुंच सकें। अलबत्ता उसे ये मालूम हो चुका है कि उस कुएं की तह में एक चौड़ा प्लेटफार्म है, जबकि मशीनरी उस प्लेटफार्म के निचले हिस्से में नस्ब है और बाकायदा एक कमरा सा बना हुआ है ताकि मशीनरी को महफूज रखा जा सके। हमने वहां इंतजार करना है क्योंकि जाहिर है हमारे नीचे गिरते ही स्क्रीन पर चेक कर दिया जाएगा और फिर हमें हलाक करने के लिए उन्हें रास्ता खोलकर आदमी बाहर भेजना पड़ेंगे। इमरान ने कहा, लेकिन फिर अचानक वो ठठक कर रुक गया। उसकी तेज नजरें सामने एक जगह पर जमी हुई थीं। सुनो, सामने सुर्ख झाड़ियों का जो वसी दायरा सा नजर आ रहा है, ये उस कुएं की छत है जो अंदर से ही खोली जाती है, तो वो अंदर जाकर साइड की दीवारों से जा मिलती है और यकीनन उसे उस वक्त तक न खोला जाएगा जब तक हम उसके ऊपर ना पहुंच जाएं। अगर उन्होंने हमें अंदर गिराने का फैसला कर दिया तो वो उसे अचानक खोल देंगे, और अगर हम सही सलामत पार कर गए तो उसका मतलब है कि वो हमें अंदर गिराकर हलाक नहीं करना चाहते और फिर हम बम मार कर उसे खोलेंगे। लेकिन अगर अचानक खुल जाए तो नीचे उस पुख्ता प्लेटफार्म पर गिरकर हम हलाक या जख्मी भी हो सकते हैं। जॉर्ज के मुताबिक कुआं बेहद गहरा है, इसलिए सब लोग चौकना रहें और उसकी गहराई की वजह से हम पैराट्रोपिंग के अंदाज में नीचे गिरकर अपने आप को जख्मी होने या हलाक होने से बचा सकते हैं। इसलिए सब मोहतात रहना और चौकन्ना भी, इमरान ने कहा। जब इमरान ने यह बात कही तो सब ने इस बात में सर हिला दिए। इमरान आगे बढ़ा और उसके साथी भी आगे बढ़े। चंद लम्हों बाद वो सब उस झाड़ियों वाले दायरे के अंदर पहुंच चुके थे। होशियार, हम दरमियान में हैं, इमरान ने कहा, और फिर उस फिक्रा अभी मुकम्मल ही हुआ था कि अचानक इमरान समेत सबको यूं महसूस हुआ कि अचानक उनके पैरों तले से जमीन गायब हो गई है और वो सर के बल नीचे गिरते चले जा रहे हैं। लेकिन चूंकि वो पहले से चौकन्ना और उसके लिए तैयार थे और फिर उनकी तरबियत भी इस अंदाज में की गई थी कि नीचे गहराई में गिरते हुए उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को संभाल लिया था बल्कि गलाबाजी खाकर जब वो सीधे हुए तो उनके कदम प्लेटफार्म पर पड़े और वो चंद कदम दौड़कर रुक गए। अलबत्ता सफदर और तनवीर कलाबाजी खाते हुए आपस में टकरा गए थे, इसलिए वो दोनों गलत अंदाज में गिरे थे और उन्हें काफी चोटें आई थीं। लेकिन बहरहाल ये चोटें ऐसी नहीं थीं कि वो बेबस हो जाते। इमरान और कैप्टन शकील ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देकर खड़ा किया और चंद लम्हे छोड़कर देखा तो वो दोनों ही ठीक ठाक थे। कुएं की छत खुद ब खुद बंद हो गई थी।
लेकिन छत के बंद होते ही अंदर खुद ब खुद रोशनी फैल गई थी। अब क्या होगा? जोलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, इमरान ने कहा। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, एक अमकान है कि उन्होंने हमें नीचे गिरा दिया और उनके ख्याल के मुताबिक हम अचानक गिरे हैं। इसलिए इस कदर गहराई में गिरने के बाद जाहिर है हम शदीद जख्मी या हलाक हो चुके होंगे और हमारी लाशों की चेकिंग करने अब लेबॉर्ट्री के अंदर से कोई ना कोई आएगा और फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। इमरान ने कहा तो सब बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। फिर वो सब साइड मौजूद सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंच गए, जहां वाकई इंतहाई हैवी मशीन मौजूद थी जो खुद ब खुद चल रही थी। अगर इस मशीनरी को बंद कर दिया जाए तो लेबॉर्ट्री में पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी और उन्हें लाजमन बाहर आना पड़ेगा, सफदर ने कहा। मशीनरी किसी वक्त भी खराब हो सकती है, इसलिए लेबॉर्ट्री की जरूरत का पानी लाजमन स्टॉक किया जाता होगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो आगे बढ़ा और साइड पर होकर उसने ऊपर देखना शुरू कर दिया, जबकि बाकी साथी नीचे मौजूद थे। इमरान साहब, आप इसलिए यहाँ आ गए हैं कि वो हमें चेक न कर सकें और प्लेटफार्म खाली देखकर वो यकीनन नीचे आएंगे, सफदर ने कहा। अगर मैंने हतमी तौर पर कोई बात की तो जोलिया ने एक बार फिर मुझ पर गैब जानने का इल्ज़ाम लगा देना है, इसलिए अमकानी बात यही है कि वो लोग यहाँ बाहर से हमें ना देख सकेंगे और हैरान होंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक अंदरूनी सिक्योरिटी से होगा और वो कभी इस कुएं में ना उतरे होंगे, इसलिए वो हमें गायब देखकर हैरान होंगे, इमरान ने कहा। लेकिन बहरहाल उन्हें ये तो मालूम होगा कि हम नीचे उतरे हैं, फिर कहाँ गायब हो गए हैं, सफदर ने कहा। ऐसी सूरत में वो पहले बेहोश कर देने वाली गैस अंदर फायर करेंगे, फिर नीचे उतरेंगे और मैंने खुद भी वो गोलियां खा ली थी और तुम्हें भी खिला दी थी, जिसकी वजह से हम 8 घंटों तक किसी भी गैस से बेहोश नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ बेहोशी का मतलब मौत ही निकल सकता था, इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। तुम्हारा ज़हन अल्लाह ताला ने खसूसी तौर पर बनाया है। जिस अंदाज में तुम सोचते हो और नतीजा निकालते हो, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, जोलिया ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। मेरा दिल भी अल्लाह ताला ने खसूसी अंदाज में बनाया है और ये दिल सिर्फ एक के लिए धड़कता है, इमरान ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। तो जोलिया का बेख्तियार मुंह दूसरी तरफ फिर गया, उसके चेहरे पर रंग शहाबी हो गया था। और मुझे भी अल्लाह ताला ने खसूसी तौर पर बनाया है कि तुम्हें गोली मार दूं, तनवीर ने कहा तो इमरान समेत सब बेख्तियार हंस पड़े। अलबत्ता जोलिया का मुंह बन गया था। सोच समझ कर बात किया करो तनवीर, जोलिया ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। खामोश। खामोश, अचानक इमरान ने सरसराते हुए लहजे में कहा। तनवीर, जो शायद कोई बात कहने के लिए मुंह खोल ही रहा था, यकलक खामोश हो गया। इमरान जरा सा पीछे हो गया था। चंद लम्हों बाद ऊपर प्लेट पर हल्के हल्के धमाके से होने लगे और उसके साथ ही सफेद रंग का धुआं सा कुएं में फैलता चला गया। वो सब खामोश खड़े थे,
उन्होंने सांस भी न रोके थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि बेहोशी से बचाने के लिए खसूसी दवा उनके खून में शामिल है, इसलिए कोई गैस उन पर असर न कर सकेगी। तुम यहीं रुकना, इमरान ने गर्दन मोड़कर सरगोशियाना लहजे में कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद इमरान ने इस अंदाज में हरकत की जैसे ऊपर उसे कुछ नजर आ गया हो। चंद लम्हों बाद प्लेटफार्म पर इंसानी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। इमरान तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा और उसके साथ ही मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट के साथ ही इंसानी चीखों से कुआं गूंज उठा। इमरान ऊपर पहुंच चुका था और चंद लम्हों बाद ही वो वापस आया तो उसने एक जख्मी को उठाया हुआ था जिसकी टांगों में गोलियां लगी थीं। क्या नाम है तुम्हारा? जल्दी बताओ। इमरान ने उसे फर्श पर लेटाकर उसकी गर्दन पर अंगूठा रखकर उसे मखसूस अंदाज में दबाते हुए कहा। टाड, मेरा नाम टाड है, उस आदमी ने कहा। किससे तुम्हारा ताल्लुक है? जल्दी बताओ, इमरान ने और ज्यादा सख्त लहजे में कहा। हमारा ताल्लुक सिक्योरिटी से है, लेबॉर्ट्री सिक्योरिटी से, टाड ने जवाब दिया। और फिर इमरान ने मुसलसल और पै दर पै सवालात के जब आपने मतलब की तमाम बातें पूछ ली इमरान ने मुसलसल और पै दर पै सवालात करके जब अपने मतलब की तमाम बातें पूछ ली तो उसने मशीन पिस्टल की नाल उस आदमी के सीने पर रखकर ट्रिगर दबा दिया और वो आदमी तड़पकर हलाक हो गया। सिक्योरिटी विंग लेबॉर्ट्री से अलहदा है, लेकिन डॉक्टर जोसेफ चाहे तो दरमियान से रास्ता खुल सकता है और सिक्योरिटी विंग से भी रास्ता लेबॉर्ट्री में जाता है। वैसे नहीं, और सिक्योरिटी विंग में ड्रैक मौजूद है और उसका नायब हाइक भी। मुझे यकीन है कि जब ये लोग जो अंदर आए हैं वापस बाहर नहीं जाएंगे तो हाइक खुद यहाँ आएगा। उसके बाद यकीनन ड्रैक आएगा और यकीनन ड्रैक के पास वो सामान मौजूद होगा जिसकी मदद से बाहर से भी इस रास्ते को खोला जा सकता है, इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। इमरान वापस मुड़ा और उसी पोजीशन में दोबारा खड़ा हो गया जिस पोजीशन में वो पहले ऊपर चेकिंग करता रहा था, जबकि बाकी साथी वैसे ही छत के नीचे। थोड़ी देर बाद ऊपर से किसी की बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। बोलने वाला साथ साथ ओवर भी कह रहा था, इसलिए वो समझ गया कि वो ट्रांसमीटर पर बात कर रहा है। बंद कुएं की वजह से उन्हें ऊपर होने वाली तमाम गुफ्तगू सुनाई दे रही थी और समझ में आ रही थी। फिर मालूम हुआ कि वो आदमी नीचे उतर रहा है। इमरान अपनी मखसूस जगह पर मौजूद था। अचानक इमरान ने जेब में हाथ डाला और जेब से एक मशीन पिस्टल निकालकर उसने उसका रुख ऊपर की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। 2 बार चट चट की आवाज के साथ ही इस तरह धमाका हुआ जैसे कोई इंसान मामूली सी बुलंदी से नीचे गिरा हो। इमरान ने गन पिस्टल वापस जेब में डाल लिया। ये हाइक होगा, मैंने उसे बेहोश कर दिया है, अब यकीनन हाइक खुद आने पर मजबूर होगा, इमरान ने कहा। वो खुद आने की बजाय सिक्योरिटी के मजीद अफराद को भी भेज सकता है और छत बंद करके हमें यहाँ कैद भी कर सकता है, जोलिया ने कहा। नहीं, हाइक ने अभी उसे ट्रांसमीटर पर जो कुछ बताया है उसके बाद अब जबकि मजीद ट्रांसमीटर कॉल अटेंड न की जाएगी और हाइक वापस ऊपर नहीं जाएगा तो वो खुद आएगा। और ये बात पहले ही मैं मालूम कर चुका हूँ कि पहले आने वाले 4 अफराद के अलावा वहाँ सिक्योरिटी के मजीद अफराद मौजूद नहीं हैं। अब वहाँ ड्रैग के अलावा सिर्फ मशीन रूम में काम करने वाले आदमी मौजूद हैं, इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर थोड़ी देर बाद इमरान ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने के लिए कहा। वो ऊपर चेकिंग कर रहा था। उसके साथ ही इमरान ने हाथ को मखसूस अंदाज में घुमाकर सफदर को इशारा किया तो सफदर ने अपनी जेब से एक छोटा सा पिस्टल निकालकर इमरान के हाथ में दे दिया।
इमरान ने पिस्टल को हाथ में पकड़ा और फिर तेजी से सीढ़ियां ऊपर चढ़ने लगा। उसके साथ ही चट की आवाज सुनाई दी और एक धमाका हुआ और फिर किसी के नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी। आ जाओ, आप जल्दी करो, इमरान की आवाज सुनाई दी तो वो सब तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर प्लेटफार्म पर पहुंच गए, जहां 3 अफराद की लाशें पड़ी हुई थीं, जबकि 2 आदमी वैसे ही बेहोश पड़े हुए थे। आपने खसूसी तौर पर बैलून पिस्टल क्यों इस्तेमाल किया है? सफदर ने कहा। ये ड्रैक होगा और ये इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट है। अगर इसकी नाक पर बराह रास्त बैलून गैस का इस्तेमाल न किया जाता तो लाजमन ये सांस रोक लेता, इमरान ने जवाब दिया। तो सफदर ने इस अंदाज में सर हिलाया जैसे बात अब उसकी समझ में आ गई हो, जबकि इमरान ने ड्रैक की तलाशी लेना शुरू कर दी। लेकिन सिवाय मशीन पिस्टल के उसके लिबास से और कुछ पर अमन न हुआ तो वो सीधा हो गया। मेरा ख्याल गलत साबित हुआ है कि उसके पास वो मखसूस आला मौजूद होगा जिससे बाहर से रास्ता खोला जा सकता है। अब उस हाइक के हाथ में मौजूद फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर को इस्तेमाल करना होगा, इमरान ने कहा और उसके साथ उसने आगे बढ़कर बेहोश पड़े हुए हाइक के हाथ में मौजूद ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, ड्रैक बोल रहा हूं, ओवर, इमरान ने ड्रैक की आवाज और लहजे में कहा, क्योंकि पहले वो हाइक से ड्रैक की ट्रांसमीटर पर होने वाली बातचीत सुन चुका था और कुएं में खामोशी के साथ साथ चूंकि आवाज गूंजती थी इसलिए ड्रैक की आवाज जो ट्रांसमीटर से निकल रही थी उसे भी इमरान बखूबी सुन रहा था, क्योंकि उसे टाट से मालूम हो गया था कि असल बॉस ड्रैक है जबकि मशीन इंचार्ज आर्नल्ड है। इसलिए उसने हाइक की बजाय ड्रैक की आवाज में बात करने का फैसला किया था। यस बॉस, आर्नल्ड बोल रहा हूं, ओवर, चंद लम्हों बाद एक आवाज सुनाई दी। आर्नल्ड, यहाँ हाइक भी बेहोश पड़ा हुआ है और पाकिस्तानी एजेंट भी नीचे मशीनरी वाले हिस्से में जख्मी और बेहोश पड़े हुए हैं, जबकि मैं अचानक नीचे गिर जाने की वजह से जख्मी हो गया हूं। तुम ऐसा करो कि तुम अपने ऑपरेटर को साथ लेकर यहां आ जाओ ताकि बेहोश हाइक को भी बाहर निकाला जा सके और मुझे सहारा देकर सीढ़ियां चढ़ाया जा सके, ओवर, इमरान ने कहा। ओह अच्छा बॉस, मैं अभी आ रहा हूं, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। जल्दी आओ, यहाँ न जाने कैसी गैस है कि मेरा दम घुट रहा है, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इस ड्रैक को उठाकर कांधे पर डाल लो कैप्टन शकील, जबकि इस हाइक को गोली मार दो। हमने ऊपर जाना है, इस आर्नल्ड के अलावा बाकी अफराद को हमने गोली मारनी है, इमरान ने कहा और आगे बढ़कर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया। फिर वो उस जगह पहुंचकर रुक गया जहां से वो जरा सा सर बाहर निकालकर देख सकता था। उसे चूंकि मालूम था कि हाइक और ड्रैक किस तरफ से आए थे, इसलिए उसका रुख भी उसी तरफ था। वो जरा जरा से वक्फे के बाद मामूली सा सर उठाकर चेक कर लेता था और फिर अचानक वो एक झटके से उछलकर ऊपर चढ़ आया और उसके साथ ही तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही बाहर इंसानी चीखें सुनाई दी। खबरदार, हाथ उठा लो आर्नल्ड, इमरान की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और उसके पीछे मौजूद जोलिया बिजली की सी तेजी से ऊपर चढ़ गई। उसने देखा कि 4 अफराद जमीन पर पड़े तड़प रहे थे, जबकि एक आदमी हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। इमरान तेजी से आगे बढ़ रहा था
और दूसरे लम्हे वो आदमी चीखता हुआ उछलकर नीचे जा गिरा। इमरान ने अचानक उस पर हाथ छोड़ दिया था। फिर वो आदमी जैसे ही नीचे गिरा, इमरान की लात हरकत में आई और उठने की कोशिश करता हुआ वो आदमी कनपट्टी पर जरब खाकर साकित हो गया। इस दौरान बाकी अफराद भी कुएं से बाहर आ गए थे। ड्रैक कैप्टन शकील के कंधों पर लदा हुआ था। इस आर्नल्ड को भी उठाओ और आओ, अब यकीनी तौर पर रास्ता खुला हुआ होगा, इमरान ने कहा और फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो सब वाकई ऐसी जगह पहुंच गए जहां किसी संदूक के ढक्कन की तरह जमीन का एक हिस्सा ऊपर को उठा हुआ था और नीचे सड़क सी जा रही थी। इमरान अपने साथियों समेत नीचे उतरता चला गया। थोड़ी देर बाद वो सब सिक्योरिटी विंग में पहुंच गए। इमरान और उसके साथियों ने वहां का तफसीली जायजा लिया। वहां कोई आदमी मौजूद न था, अलबत्ता मशीन रूम में मशीनें काम कर रही थीं। इमरान ने मशीन रूम में पहुंचकर तमाम मशीनों का जायजा लिया और फिर उसने एक मशीन को ऑपरेट करके न सिर्फ रास्ता बंद कर दिया बल्कि उस कुएं की छत भी बराबर कर दी। जबकि इस दौरान ड्रैक और आर्नल्ड दोनों को उस मशीन रूम में लाकर कुर्सियों पर बिठाकर बांध दिया गया। रस्सियां उन्हें इस मशीन रूम की साइड में मौजूद स्टोर से मिल गई थीं। इस आर्नल्ड को पहले होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो सफदर ने आगे बढ़कर आर्नल्ड का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। वो चौंके कनपट्टी पर जरब खाकर बेहोश हुआ था, इसलिए वो जल्द ही होश में आ गया और सफदर पीछे हट गया। तुम्हारा नाम आर्नल्ड है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तुम क्या मतलब? ये बॉस ड्रैक, वो कुआं, क्या मतलब? आर्नल्ड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तनवीर, इसकी एक आंख निकाल दो, इमरान ने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा। ओके, तनवीर ने कहा और वो जारहाना अंदाज में आगे बढ़ने लगा। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, आर्नल्ड ने इंतहाई खौफजदा से लहजे में कहा। तुम जरूरत से ज्यादा चालाक बन रहे हो। अब अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो, इमरान ने हाथ उठाकर तनवीर को रोकते हुए कहा। तुम क्या चाहते हो? मैं तो मशीन रूम इंचार्ज हूं, आर्नल्ड ने कहा। अगर तुम हमसे तावन करो तो जिंदा रह सकते हो, वरना बाकी सब अफराद की तरह तुम्हें भी गोली मार दी जाएगी। बोलो, तावन के लिए तैयार हो या नहीं? इमरान ने इंतहाई जारहाना अंदाज में कहा। हाँ, मैं तावन करूंगा, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, आर्नल्ड ने और ज्यादा खौफजदा होते हुए कहा। तो ये बताओ कि लेबॉर्ट्री में जाने का रास्ता कहाँ है और कैसे खुलता है? इमरान ने कहा। वो यहाँ से नहीं खुल सकता। वो डॉक्टर जोसेफ खोल सकता है, लेकिन उसे कह दिया गया है कि जब तक पाकिस्तानी एजेंट मेरा मतलब है कि तुम हलाक नहीं हो जाते, वो किसी सूरत भी रास्ता नहीं खोलेगा। वैसे भी डॉक्टर जोसेफ जिद्दी आदमी है, आर्नल्ड ने कहा। उसे कौन बताएगा कि पाकिस्तानी एजेंट हलाक हो चुके हैं? इमरान ने कहा। सुपर चीफ आर्चर बताएगा और आर्चर को ड्रैक बताएगा। और ये भी बता दूं कि डॉक्टर जोसेफ के पास भी वॉइस चेकिंग कंप्यूटर मौजूद है और उसमें यहां से सिर्फ ड्रैक की आवाज फीड है और किसी की नहीं। और यकीनन आर्चर की आवाज भी फीड होगी, आर्नल्ड ने जवाब देते हुए कहा। यहां से डॉक्टर जोसेफ को फोन कॉल की जाती है या ट्रांसमीटर कॉल? इमरान ने कहा। फोन कॉल, आर्नल्ड ने जवाब दिया। उसका फोन नंबर क्या है? इमरान ने पूछा तो आर्नल्ड ने नंबर बता दिया।
وہ راستہ کہاں کھلتا ہے اس کی تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ اس مشین روم کے نیچے سٹور ہے، وہاں سے راستہ کھلتا ہے، لیکن وہ دیوار ریڈ بلاکس کی بنی ہوئی ہے، اس کو ایٹم بم بھی نہیں توڑ سکتا، آرنلڈ نے جواب دیا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر جوزف کے پاس وائس چیکنگ کمپیوٹر ہے، عمران نے کہا۔ چیف ڈریک نے، آرنلڈ نے جواب دیا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دو، عمران نے کہا تو تنویر نے آگے بڑھ کر بجائے اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کے بازو کو مایا اور کن پٹی پر پڑنے والی مڑی ہوئی انگلی کی ایک ہی ضرب سے آرنلڈ کی گردن ڈھلک گئی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہا تھا، عمران نے جان بوجھ کر غصیلے لہجے میں کہا۔ میں اس کا ملازم نہیں ہوں کہ اس کا منہ بند کر کے کھڑا رہوں۔ تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، پھر کہو گے تو ایک ہی تھپڑ سے دوبارہ ہوش میں آ جائے گا، تنویر نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے ایک طرف پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور وہ نمبر پریس کر دیے جو آرنلڈ نے بتائے تھے۔ ڈاکٹر جوزف بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ ڈریک بول رہا ہوں ڈاکٹر جوزف، عمران نے کہا۔ اوہ، تم ڈریک نہیں ہو؟ کون بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس وائس چیکنگ کمپیوٹر ہے۔ پھر سن لو کہ میرا نام علی عمران ہے اور میرا تعلق پاک ایشیا سے ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہارا نمبر ٹریس کیا ہے، لیکن اب یہ بھی بیکار ثابت ہوا ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب یہ خود ہی فون کرے گا، عمران نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، اور پھر واقعی چند لمحوں بعد گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، آرنلڈ بول رہا ہوں، عمران نے اس بار آرنلڈ کی آواز میں کہا۔ کون آرنلڈ؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ مشین روم انچارج، آپ کون بول رہے ہیں؟ عمران نے کہا۔ میں ڈاکٹر جوزف بول رہا ہوں، ڈریک کہاں ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ باس ڈریک اور ہائیک جارجیا گئے ہیں جناب، حکم کیجئے، عمران نے کہا۔ ان حالات میں کیوں گئے ہیں؟ ڈاکٹر جوزف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ انہیں کوئی ضروری کام تھا جناب۔ ویسے یہاں ہر طرح سے ریڈ الرٹ ہے جناب، اور میں بھی یہاں موجود ہوں، وہ بس 2 گھنٹوں کے اندر واپس آ جائیں گے، عمران نے کہا۔ جب وہ واپس آئیں تو میری بات کرانا ان سے، ڈاکٹر جوزف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب واقعی اس ڈاکٹر جوزف کو چکر دینا مشکل ہو گیا ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو اس ڈریک کو مجبور کر دو کہ وہ تمہاری مرضی کی بات کرے، جولیا نے کہا۔ ڈریک انتہائی تربیت یافتہ آدمی ہے، اس لیے وہ مر تو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی پیشانی پر شکنیں پڑتی چلی گئیں۔ چند لمحوں بعد وہ بے اختیار چونک پڑا۔ ٹھیک ہے، آرنلڈ کو گولی مار دو اور ڈریک کو ہوش میں لے آؤ۔
उसके मुंह में पानी डाल दो, इमरान ने कहा। तो तनवीर ने बिजली की सी तेजी से जेब में हाथ डाला और मशीन पिस्टल निकालकर उसने बेहोश आर्नल्ड पर फायर खोल दिया, जबकि इस दौरान सफदर उठकर मुल्का बाथरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक जग में पानी भरकर वापस आया और उसने ड्रैक का जबड़ा पेंचकर पानी उसके हल्क में उंडेल दिया और फिर जग एक तरफ रखकर वो पीछे हट गया। चंद लम्हों बाद ड्रैक ने कराहते हुए आंखें खोल दी। ओह ओह, तुम ये तो मशीन रूम है, ड्रैक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। आर्नल्ड की लाश तुम्हारे साथ कुर्सी पर मौजूद है और हाइक और तुम्हारे सिक्योरिटी के आदमियों और मशीन रूम के तमाम आदमियों की लाशें कुएं में और बाहर पड़ी हुई हैं। अब हमारे अलावा सिर्फ तुम जिंदा हो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। वेरी बैड, ये सब कैसे हो गया, ड्रैक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान ने उसे मुख्तसर तौर पर तमाम वाकयात बता दिए। है, तुम लोग वाकई खुशकिस्मत हो कि हर काम तुम्हारे हक में ही चला जाता है। बहरहाल तुम क्या चाहते हो, ड्रैक ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। हमें सिर्फ फार्मूला दिला दो, हम लेबॉर्ट्री को तबाह किए बगैर वापस चले जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में फार्मूला भी हम ले जाएंगे और लेबॉर्ट्री भी तबाह हो जाएगी, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। क्या तुम्हारा नाम इमरान है, ड्रैक ने कहा। हाँ, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो फिर सुन लो इमरान, के दोनों ही काम नामुमकिन है। तुम मुझे हलाक तो कर सकते हो, लेकिन ना लेबॉर्ट्री खुल सकती है और ना ही तुम उसे तबाह कर सकते हो, ड्रैक ने इंतहाई पुरएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। अभी तुमने खुद ही कहा है कि खुशकिस्मती हमारे साथ रहती है, इसलिए नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है, लेकिन हलाकशुदा आदमी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। सॉरी इमरान, तुम जो चाहो कहो, जो चाहे कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये ठीक है कि मैं उस कुएं की अंदरूनी माहियत ना जानने की वजह से मार खा गया हूँ और तुम्हें मुझ पर काबू पाने का मौका मिल गया, वरना शायद ऐसा ना होता। अगर मुझे इस बात पर हैरत ना होती कि तुम अंदर मौजूद नहीं हो, तो मैं इस कुएं को ही बमों से उड़ा देता। मशीनरी दोबारा नस्ब की जा सकती थी, लेकिन ऐसा मौका फिर ना आ सकता था, ड्रैक ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अभी मेरी डॉक्टर जोसेफ से बात हुई है, मैंने उसे बताया है कि ड्रैक और हाइक दोनों जॉर्जिया गए हुए हैं। उसने कहा है कि जब वो आए तो मेरी बात कराना। क्या तुम उससे बात करना चाहोगे, इमरान ने कहा। तुमसे बात हुई है, क्या मतलब, वो तुम्हें कैसे जानता है? और अगर जानता था तो वो अब तक यहाँ कुछ न कुछ कर चुका होता, ड्रैक ने कहा। मैंने चेक कर दिया है, ये पोर्शन बिल्कुल अलग है। वो यहाँ क्या कर सकता है, इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, क्योंकि मैं तो अब यहाँ आया हूँ। अलबत्ता मेरा ख्याल है कि वो कुछ न कुछ बहरहाल कर सकता होगा, ड्रैक ने जवाब दिया। तो इमरान ने महसूस कर दिया कि ड्रैक सच बोल रहा है। फिर आखिरी सूरत यही है कि हम इस कुएं को तबाह करके वहां से रास्ता बनाएं, पाइप तोड़ दें और सीधे लेबॉर्ट्री में दाखिल हो जाएं, इमरान ने कहा। लेबॉर्ट्री के गिर्द रेड ब्लॉक्स की दीवारें हैं जो इंतहाई गहराई तक बनाई गई हैं, और ये पाइप बहरहाल इतने बड़े नहीं हो सकते कि उसके सुराख में से कोई आदमी दूसरी तरफ जा सके। उसके अलावा इंजीनियर्स ने कोई ना कोई हिफाजती इक़दाम बहरहाल किए होंगे, ड्रैक ने कहा।
तो तुम्हारा ख्याल है कि हम यहाँ तक पहुंचकर अब वापस चले जाएं? इमरान ने कहा। मुझे मालूम है कि सीक्रेट एजेंट इस तरह वापस नहीं जाया करते, वो आखिरी हद तक कोशिश करते रहते हैं। तुम भी कोशिश करो, लेकिन मुझसे किसी इमदाद की तवक्को न करना, ड्रैक ने कहा। और फिर उससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता, यकलख्त तड़तड़ाहट की तेज आवाज के साथ ही ड्रैक के मुंह से कर्बनाक चीख निकल गई और उसका बनता हुआ जिस्म एक लम्हे के लिए बुरी तरह तड़पा और फिर साकित हो गया। इमरान ने सर घुमाया, उसके चेहरे पर गुस्से के तसरात थे। ये इस तरह बकवास किए जा रहा था जैसे हम उसकी इमदाद के मोहताज हों। नॉनसेंस, तनवीर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। तनवीर, तुम बाज औकात हद से बाहर निकल जाते हो। मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता डब पर लाने की कोशिश कर रहा था और मुझे यकीन था कि वो डॉक्टर जोसेफ से हमारी मर्जी की बात करने पर मजबूर हो जाएगा, मगर तुमने सारी कहानी ही खत्म कर दी, इमरान ने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा। तुमने ऐसी बातें करनी होती हैं तो मुझे बाहर भिजवा दिया करो। मुझसे इन लोगों की ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होती। और ये भी सुन लो कि ये किसी सूरत भी तुमसे ताअवुन करने पर तैयार ना होता और उसकी जिंदगी का हर लम्हा हमारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता था। लेबॉर्ट्री को तबाह करने का जहां तक ताल्लुक है तो सारे बम इकट्ठे करके उसमें फायर कर देते हैं। मुझे यकीन है कि रास्ता बन जाएगा, इमरान ने भी खुशमगीन लहजे में कहा। तनवीर, तुमने गलत इकदाम किया है, इमरान से माफी मांगो, जोलिया ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। आई एम सॉरी इमरान, तनवीर ने फौरन ही कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। वाह, इसे कहते हैं ताबेदारी का मुजाहरा। अभी से यकीन दिलाया जा रहा है कि मैं ताबेदार रहूंगा, इमरान ने हंसते हुए कहा। जोलिया डिप्टी चीफ है, इसलिए उसके कहने पर मैंने सॉरी कह दिया है, वरना, तनवीर ने झुलाए हुए लहजे में कहा। इमरान साहब, सूरत हाल वाकई इंतहाई गंभीर है। हम यहाँ तक पहुंच जाने के बावजूद अभी तक इब्तिदाई स्टेज पर ही हैं। हमें जल्द अज जल्द कुछ न कुछ करना होगा, वरना किसी भी लम्हे यहाँ कुछ भी हो सकता है, सफदर ने कहा। और उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। आर्नल्ड बोल रहा हूं, इमरान ने आर्नल्ड की आवाज में जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर जोसेफ बोल रहा हूं, क्या ड्रैक नहीं आया? नहीं आया वापस अभी? दूसरी तरफ से डॉक्टर जोसेफ की आवाज सुनाई दी। नो सर, मगर आप क्यों बार बार पूछ रहे हैं? कोई मसला हो तो मुझे बताएं, मैं मशीन रूम इंचार्ज हूं, इमरान ने कहा। मुझे एक आदमी ने ड्रैक बनकर फोन करने की कोशिश की है। वॉइस चेकिंग कंप्यूटर ने उसे चेक कर दिया, वरना मेरे नजदीक वो ड्रैक ही बात कर रहा था, इसलिए मैं परेशान हूं कि ये आदमी कौन हो सकता है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह डॉक्टर जोसेफ, वो बॉस ड्रैक ही होंगे। उन्हें गले की गदूद का प्रॉब्लम अक्सर रहता है, इसलिए उनकी आवाज में बाज औकात लिसानी तब्दीलियां आ जाती हैं। और मेरे बारे में तो आप जानते हैं कि मैं ऐसी मशीनरी का माहिर हूं। इन लिसानी तब्दीलियों की सूरत में वाकई चेकिंग कंप्यूटर भी आवाज ओके नहीं करता, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओह, अब मुझको तो मालूम न था, लेकिन फिर वॉइस चेकिंग कंप्यूटर का क्या फायदा हुआ, डॉक्टर जोसेफ ने कहा। ऐसा बाज औकात होता है, वरना तो ये कंप्यूटर दुरुस्त चेकिंग करता है। बहरहाल अब बॉस ड्रैक वापस आने ही वाले होंगे, इसलिए जब वो यहाँ आएंगे तो मैं उनसे बात करके आपसे बात करा दूंगा, इमरान ने कहा।
ओके ठीक है, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। ये आवाज में लिसानी तब्दीलियों से आपका क्या मतलब था इमरान साहब? कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। वो सोलर एनर्जी का साइंसदान है, उसे क्या मालूम कि लिसानी यानी बोलने में तब्दीलियां क्या होती हैं। ये और बात है कि गले के गदूदों में गड़बड़ हो जाए तो आवाज में मामूली सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन बहरहाल कंप्यूटर उसे चेक नहीं कर सकता। वॉइस चेकिंग कंप्यूटर की सेटिंग और तरीके से की जाती है। इमरान ने कहा तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। तुम दूसरों को बेवकूफ बनाने के वाकई माहिर हो, इस बार तनवीर ने कहा, और तुम दूसरों को अक्लमंद बनाने की कोशिश करते रहते हो ताकि तुम्हारा स्कोप कायम रहे। इमरान ने जवाब दिया तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। अब आप कुछ देर बाद दोबारा बात करेंगे, सफदर ने कहा। हाँ, और मुझे यकीन है कि अब डॉक्टर जोसेफ बात कर लेगा, इमरान ने कहा तो सब ने इस बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।